میرے ابا کو مہینے میں زیادہ سے زیادہ 10 دن کام ملتا تھا اور باقی دن کام کی تلاش میں لگے رہتے۔ ہماری زندگی بہت سی کمپلسری سی گزر رہی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا تو دوسرا وقت فاقہ کشی میں گزر جاتا۔ گھر کے اخراجات اور میرے خرچے پورے کرنے کی خاطر اماں ابا نے اجازت لے کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ کر نوکری کی تلاش کر دی۔ نوکری تو نہ ملی لیکن مجھے ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کام مل گیا تھا جو میں نے خوشی خوشی کرنا شروع کر دیا۔ چلو اس بہانے گھر کے اخراجات تو بہتر ہو جاتے۔ تنخواہ میری 8,000 ماہانہ تھی۔ ایک سال گزر گیا اور امی کو میری شادی کی فکر ہو گئی۔ میری عمر 18 سال ہو رہی تھی۔ اماں کہتی اب میری شادی ہو جائے، کیونکہ اماں ابا سے کہتی تھی کہ میری شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور زیادہ عمر گزاری تو مجھے کوئی لڑکی نہیں ملے گی۔ میں نے حامی بھر لی اور اماں نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں ہم نے رشتے کروانے والی خالہ سے بھی مدد لی۔ مجھ سے کم عمر والی لڑکی کا رشتہ تو نہ ملا، البتہ جس لڑکی کا رشتہ ملا وہ مجھ سے 6 سال بڑی تھی۔ اس کا بھی کوئی رشتہ نہیں آیا تھا اور وہ اپنے ماں باپ کے دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کافی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا ایک بھائی دبئی میں ہوتا تھا، باقی جو 2 بھائی تھے وہ بھی کافی امیر تھے۔ بہرحال اماں نے میرا اس لڑکی سے اس لیے رشتہ طے کر دیا کہ شاید اس طرح میرے بیٹے کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ پھر کچھ ہی دنوں میں میری شادی عروج سے بے سادگی سے ہوگی۔ شادی کی پہلی رات جب میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھے قبول صورت تھی۔ دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوبصورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں بھی کوئی خوبصورت شہزادہ تو نہیں تھا، میں بھی قبول صورت تھا، اور دیکھا جائے تو ہم دونوں کی جوڑی بہت اچھی تھی۔ ہماری شادی میں عروج کے صرف 2 بھائیوں نے شرکت کی تھی۔ دبئی والا بھائی نہیں پہنچ سکا تھا کیونکہ وہ جس کمپنی میں کام کرتا تھا اسے وہاں سے چھٹی نہیں ملی تھی، اور اس نے عروج سے کہا کہ جب میں پاکستان آؤں گا تو سب سے پہلے اس سے ملنے آؤں گا۔ شادی کے بعد ہماری زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ عروج بہت اچھی عورت ثابت ہوئی تھی، بہت فرما بردار اور رکھ رکھاوا کرنے والی تھی۔ اس نے اماں کو بھی کوئی کام سے کوئی منع نہیں کر دیا تھا۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی خوشحالی تو کبھی تنگ دستی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی رہتی ہے، اور جو آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ شادی کے 7 ماہ بعد ہی میرے ابو کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابو نماز اور روزے کے پابند تھے اور وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سوتے تھے۔ رات کے کسی پہر ان کو ہارٹ اٹیک آیا تو وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ پھر صبح جب فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھے تو ہمیں تشویش ہوئی، اور جب میں نے ابو کو جگایا تو وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس کے بعد اماں عدت میں بیٹھ گئی اور گھر کا سارا بوجھ مجھ پر آ گیا۔ میں جس ہوٹل میں کام کرتا تھا اس کا مالک بد مزاج اور بدتمیز تھا۔ بات بات پر وہ مجھے گالیاں دینے سے باز نہیں آتا تھا۔ ایک روز میں ہوٹل میں لیٹ پہنچا تو اس نے مجھے سب کے سامنے نہ صرف بے عزت کیا بلکہ بہن کی گالیاں دی جو مجھ سے برداشت نہ ہو، تو اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا اور دھمکی دی کہ اگر آئندہ ہوٹل کے آس پاس بھی دکھائی دیا تو تمہیں چوری کے الزام میں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں اداس اور پریشان گھر آ گیا۔ روز بھی مجھے اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، عادل کیا بات ہے، آپ اتنی جلدی آ گئے، کوئی مسئلہ ہو گیا؟ میں نے عروج کو ساری بات بتا دی، اور اگر وہ ثابت قدم نہ ہوتی تو شاید وہ پریشان ہو جاتی اور کہتی اب ہم کہاں سے کھائیں گے، گھر کے خرچے کیسے پورے ہوں گے، یا بجلی کے بل کیسے بھریں گے۔ لیکن عروج انتہائی ثابت اور سمجھدار عورت تھی۔ اس نے نہ صرف مجھے تسلی دی بلکہ کہا کہ عادل صاحب پریشان نہ ہو، اس میں اللہ کی کوئی مسلط ہوگی، اللہ نے چاہا تو آپ کہیں اور اچھی نوکری مل جائے گی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ عروج کے بھائی بھی تو اچھی جگہوں پر نوکریاں کر رہے ہیں، تو میں ان سے کہیں بات کر کے مجھے اچھی نوکری لگوا دیں۔ میں نے عروج سے بھی اس حوالے سے بات کی تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے بھائیوں سے بات کرتی ہوں۔ اس نے اپنے دونوں بھائیوں سے بات کی، انہوں نے جواب دے دیا ابھی تو ایسی جگہ کوئی خالی نہیں ہے جہاں میٹرک پر عادل کو رکھا جا سکے، البتہ جیسی کوئی جگہ بنتی ہے تو میں اسے لگوا دوں گا۔ میں بھی مطمئن تھا اور انتظار میں تھا، میری جاب لگ جائے گی اور پھر گھر کے اخراجات پورے ہوں گے۔ بجلی کا بل بھی سر پر تھا اور آخری تاریخ بھی آ گئی تھی۔ اس ہوٹل سے نکلتے وقت مالک نے میرے پیسے دے دیے تھے جتنے دن میں نے کام کیا تھا۔ اس سے بجلی کا بل بھرا اٹھا، اس لیے میں نے سب سے پہلے ہی یہی کام کیا۔ بل نہ بھرنے کی وجہ سے بجلی کا میٹر کٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میٹر کٹ جائے اور بعد میں میٹر لگوانے کے لیے دھکے کھانے پڑے۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ اسی دوران اماں بھی وفات پا گئی اور اللہ کے پاس چلی گئی، اور گھر میں صرف میں اور میری بیوی عروج رہ گئے۔ تقریباً 2-2.5 مہینے میں نوکری کے لیے دھکے کھاتا رہا، لیکن کسی نے بھی مجھے نوکری پر نہ رکھا۔ گھر میں راشن بھی ختم ہو رہا تھا، یہ پریشانی بھی الگ تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر مزدوری کا کام مل گیا۔ یہ کام میں نے زندگی میں پہلی بار کر رہا تھا، اس لیے پہلے روز ہی میری طبیعت خراب ہوگی
और मैं अगले दिन काम पर ना जा सका। मेरे सालों को पता चला तो वो अपनी बीवी समेत मेरे ख्यालियात के लिए आए। वक्त दिन दोनों ने बहनों के हाथ पर हजारों रुपए रखे। अरूज पैसे नहीं लेना चाहती थी, लेकिन साले जबरदस्ती देकर चले गए। फिर अरूज ने जब मुझे बताया तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने अरूज से कहा कि अपने भाइयों से कहो कि खुदारा मेरी मदद करने की बजाय अगर वो मुझे कहीं नौकरी लगवा दे तो मैं हक हलाल का खाना चाहता हूँ, मुझे किसी की इमदाद की जरूरत नहीं है। अरूज ने कहा वो भाइयों से बात कर रही है। एक महीना गुजरा, मुझसे मेरी बीवी ने कहा आदिल मुझे फूलों के गजरे बनाने आते हैं, अगर मैं आपको फूलों के गजरे बना कर दूं तो वो आप दरबार पर जाकर बेचेंगे। मैं खुश हो गया और कहा अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं दरबार पर जाकर बेच आया करूंगा। अरूज ने गजरे तैयार करने शुरू कर दिए। इसने मुझे काफी सारे गजरे बना कर दिए और मैं इन्हें एक बड़ी टोकरी में रखकर दरबार पर चला गया। वहाँ और भी कई लोग मौजूद थे जो गजरे फरोख्त करने के लिए आए हुए थे। मैं एक जगह पर बैठ गया और दरबार पर आने वाले लोग फूलों के गुलदस्तों को देख लेते लेकिन खरीदने नहीं थे। इस तरह एक गुलदस्ता भी फरोख्त न हुआ तो मुझे मायूसी हुई और दूसरे दिन लोगों से लोग गजरे खरीद लेते थे। थोड़ी ही देर बाद मेरे पास एक सूट बूट आदमी आया। वो शक्ल और लिबास से काफी अमीर दिखाई दे रहा था। इसने मुझसे पूछा मियाँ ये सारे गजरे कितने के हैं? मैं हैरान रह गया और पूछा कि क्या आप ये सारे गजरे खरीदना चाहते हैं? इस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ ये सारे गजरे खरीदना चाहता हूँ। कितने पैसे लोगे? मैं खुश हो गया। सारे गजरे गिनकर बताए ये सारे 400 रुपए के थे। इसने मुझे 400 की बजाय 500 रुपए दे दिए। मैं खुशी खुशी वहां से चला आया। मैंने आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और खाली टोकरी लेकर घर आया। जब मैंने सारी बात रूज को बताई तो वह बहुत ही खुश होगी। मैंने 500 रुपए इसी को दे दिए। अगले रोज इसने मुझे फिर से गजरे बना कर दिए और मैं वो दोबारा से ले जाकर बैठ गया। दूसरे लोग भी टोकरी जमीन पर रखकर बैठे हुए थे। मैंने भी गौर किया कि वो मुझे हकवार भरी नजरों से देख रहे थे। मैं इनकी हरकत का मतलब समझ सकता था क्योंकि गुलदस्ता एक रोज ही आदमी मुझसे खरीद कर चला गया था और इनके गुलदस्ते वैसे के वैसे ही पड़े थे। हर इंसान की अपनी किस्मत होती है। अल्लाह ताला हर इंसान की किस्मत जो रिज़्क देता है वही होता है। मैं इनकी हरकत पर बड़ी नजरों को देख देख कर नजरअंदाज कर रहा था और लोगों को गुलदस्तों की तरफ मतवज्जा करने लगा। कुछ ही देर गुजरी के वही कल वाला आदमी आया। मुझे ख्याल आया कि आज वो बुजुर्ग से खरीदेगा, लेकिन इसने मुझसे कहा कि ये सारे गजरे कितने खरीदना चाहता हूँ, कितने के हैं? तो मैंने सारे गुलदस्तों का हिसाब लगाया तो वो पूरे 400 के थे। इसने मुझे फिर कल की तरह 500 रुपए दे दिए और वो गजरे उठाकर चला गया। मैंने दूसरे लोगों की तरफ देखा तो वो मुझे गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। मैं वहां से खाली टोकरी उठाकर खुशी खुशी घर आ गया। जब सारी बात अरूज को बताई तो वो बहुत ही हैरान हुई और कहने लगी कि यकीनन वो कोई अमीर आदमी है। बाहर मैंने अरूज के कहने पर बाहर से खाना लिया और बहुत खुशी से खाया। छोटी छोटी खुशियां पर हमारा भी हक था। रोज अमीर से थी और मैं भी बहुत खुश था कि मुझे भी बच्चों की चाहत थी। अगले रोज मैं गजरे लेकर दरबार पर पहुंचा तो मैं हैरान रह गया क्योंकि मैं जिस जगह बैठता था वहां पहले से एक आदमी बैठा था। मैंने इससे कहा कि भाई यहाँ तो मैं बैठता हूँ, तुम क्यों बैठे हो? मुझसे कहने लगा जब से तुम आए हो कोई हमारे गजरे देखता ही नहीं। वो आदमी जब भी आता है तुम्हारे सारे गजरे ले जाता है, वो सारे तुमसे खरीद लेता है और हम मुंह देखते रह जाते हैं। आज से ही तुम यहाँ नहीं बैठोगे। इसकी बात सुनकर मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आया, लेकिन मुझे अरूज की बात याद आ गई। इसने कहा था कि किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, अपने गुस्से पर काबू रखना। हर बंदे का नसीब इसके हाथ में होता है। मैं दूसरी जगह जाकर बैठ गया। मैं जिस जगह जाकर बैठा वहां लोगों की आमदरफ्त कम थी और अब सारे गजरे इस आदमी से खरीद रहे थे और मैं खाली हाथ बैठा इसकी तरफ देख रहा था। इस रोज मुझसे कोई नहीं खरीद रहा था। अचानक मेरी नजर दरबार पर पड़ी तो मुझे वही सूट बूट आदमी दिखाई दिया। इसे देखकर मेरा अव्वल चाहा कि मैं अपनी तरफ मतवज्जा करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे नसीब में हो तो मेरे पास आ जाएगा, वरना फिर शिकवा करना कैसा। वो आदमी वहां आए आदमियों की तरफ देख रहा था। वो इसे कह रहे थे कि साहब जी हमसे गजरे खरीद लो, लेकिन इस आदमी ने गजरे ना खरीदे और इधर उधर देखा। इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो मेरी तरफ आ गया। जितने भी गजरे मेरे पास थे इसने वो सारे खरीदे और पैसे देकर दरबार के अंदर चला गया। मैंने गजरे बेचने वालों की तरफ देखा तो वो मुझे बुरी निगाहों से देख रहे थे। मैंने इनकी तरफ परवाह न की और पैसे जेब में रखे और टोकरी उठाई और घर चला गया। इस रोज भी मैंने अरूज को बताया कि आज वही आदमी सारे गजरे खरीद कर ले गया।
वो भी हैरान हुई। अब हमारी ट्रेन बन गई थी। अरूज मुझे रोज फूलों के गजरे बना कर देती और मैं असर के वक्त दरबार में गजरे फरोख्त करने चला जाता। हैरत की बात यह थी कि आखिर वो आदमी मुझसे खरीद कर इनका करता क्या है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कहीं ये आदमी मुझसे गजरे खरीद कर महंगे दामों में आगे तो फरोख्त नहीं कर देता। मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हो चुका था और मैं इस बारे में मालूम करना चाहता था। मैंने इस बारे में अरूज से कोई बात न की थी और फैसला कर लिया कि जब वो कल आकर खरीद कर चला जाएगा तो मैं इसका पीछा करूंगा। चुनाचा अगले रोज फिर मैंने गुलदस्तों से अबरू कर लिए, दरबार में अपनी महज जगह पर बैठ गया तो कुछ ही देर बाद वो आदमी गुलदस्ते खरीदने आ गया। मैंने इस आदमी से पूछना चाहा था कि आप इतने सारे गजरे खरीद कर इनका क्या करते हैं, लेकिन फिर मैंने किसी मसनद के तहत खामोश रहा। मैं अपना गाहक खराब नहीं करना चाहता था। ऐसा ना हो कि मेरे सवाल करने पर वो बुरा आमदूद हो जाए और अगले रोज वो मुझसे गजरे ही ना खरीदे। वो मुझसे सारे गजरे खरीद कर जो भी करता था मुझे कोई सरूक नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ एक बार देखना चाह रहा था। जब वो आदमी सारे गजरे खरीद कर चला गया तो मैं भी टोकरी उठाकर इसके पीछे चल दिया। दरबार के बाहर इसकी गाड़ी खड़ी थी। इसने सारे गजरे पीछे वाली सीट पर रख दिए और फिर वो गाड़ी में सवार होकर एक तरफ चल गया। मेरे पास कुछ सवारी तो थी ही नहीं कि मैं इसकी गाड़ी का पीछा करता। मैं वापस नाकाम होकर घर आ गया। शाम को मैंने अपने हमसाये रजब से कहा कि कल मुझे असर के वक्त थोड़ी देर के लिए तुम्हारा मोटरसाइकिल चाहिए, तो इसने कहा ठीक है कल ले जाना। अगले रोज मैंने असर के वक्त इससे मोटरसाइकिल मांगी और इस पर टोकरा रखकर दरबार की तरफ चल गया। मैंने मोटरसाइकिल खड़ी कर इसका इंतजार करने लगा। कुछ ही देर गुजरी तो वो आदमी आ गया और जब वो गजरे लेकर चला गया तो मैं भी जल्दी से दरबार से निकला और मोटरसाइकिल निकाल टोकरी इस पर रख इस आदमी की गाड़ी का ताक़ब करने लगा। वो आदमी एक कॉलोनी में चला गया तो मैं भी हैरान और परेशान इस कॉलोनी में दाखिल हो गया। ये वो कॉलोनी थी जहाँ मेरा ससुराल था, यानी अरूज के वालिदैन और भाई का घर। इस वक्त मेरी हैरत की तनहा न रही थी। जब मैंने इस गाड़ी का अरूज के घर से बाहर रुकता देखा, मैंने मोटरसाइकिल काफी दूर एक दरख्त के साए में रोक दी थी। इस आदमी ने गाड़ी से निकलकर सारे गजे चौकीदार को दिए और अरूज के घर चला गया। मेरा तजस्सुस और भी बढ़ गया और मैं ये जानना चाहता था कि वो आदमी कौन है और इसका अरूज से क्या रिश्ता है। चनाचा मैंने मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई और अरूज के दरवाजे पर रोक कर गेंठी हुई तो चंद लम्हों के बाद एक मुलाजिम लड़का बाहर आया। शायद नया मुलाजिम था, इसलिए मुझे नहीं जानता था। इसने मुझसे पूछा कि जी फरमाए आपको किससे मिलना है। मैंने इससे कहा कि अभी थोड़ी देर पहले इस गाड़ी का मालिक अंदर आ गया है। वो कौन है, इसका इस घर से क्या तल्लक है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। वो लड़का ना से हैरान हुआ बल्कि इसने मुझे सर से पैरों तक देखा। भाई आप कौन है और इसके बारे में क्यों पूछना चाह रही हैं? इसकी बात भी ठीक थी। जाहिर है वो क्यों किसी को बताएगा कि मैंने कहा कि भाई तुम्हारी मेहरबानी होगी, अगर तुम बता दोगे तो मैं इस गाड़ी के मालिक का इजहार भाई से किया रिश्ता है। इस लड़के ने जो कुछ बताया इसे सुनकर मेरी रूह फना होगी। मैं ज्यादा नजर इसी को देखता रह गया। गाड़ी के मालिक का नाम वसीम है और वो असद साहब के बड़े भाई हैं जो दुबई में रहते थे। वो कुछ अरसा पहले ही दुबई से पाकिस्तान आए हैं। मैं इस दिन सोच में पड़ गया था कि अगर अरूज के भाई हैं तो अरूज ने मुझे इनके पाकिस्तान आने का क्यों नहीं बताया। इनकी आमद छुपाने की क्या वजह थी। मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर की तरफ रवाना हो गया। मुझे घर पहुंचने में कुछ देर हो गई थी, इसलिए मोटरसाइकिल दोस्त को वापस करने की बजाय जब टोकरा उठाकर घर पहुंचा तो अरूज मेरी मुंतजर थी। इसके चेहरे पर परेशानी के तासरात भरे हुए थे। मेरे सलाम का जवाब देने के बाद इसने नरम लहजे में पूछा कि आज आपने इतनी देर क्यों लगा दी है, गजरे नहीं बिक रहे थे क्या? मैं इसे जवाब देने की बजाय घर में चला गया। मुझे अरूज पर गुस्सा आया था। इसने अपने बड़े भाई की आमद का मुझसे क्यों छुपाया और मुझे क्यों नहीं बताया कि इसका भाई पाकिस्तान आ गया है। इसका भाई मुझसे रोजाना गजरे लेकर जाता है। मेरे चेहरे पर नाराजगी थी, इसलिए इसने दोबारा पूछा आदिल आप ठीक तो है ना, कुछ हुआ है क्या, आप बोलते क्यों नहीं? मैंने इसकी तरफ देखा। मुझे तुमसे शिकवा है। अरूज ने कहा कि आपको मुझसे किस बात पर शिकवा है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैंने कुछ देर खामोश रहा, फिर मैंने कहा रूज तुम्हारे बड़े भाई दुबई से पाकिस्तान आए हुए हैं और तुमने मुझे बताया भी मुनासिब नहीं समझा। दूसरी बात यह कि वही रोजाना मुझसे गजरे लेकर जाते हैं और तुमने इस बारे में मुझे भी नहीं बताया। मुझे बताना तुम्हारा फर्ज नहीं था। मैं यही समझता रहा कि कोई बहुत अमीर आदमी है जो मुझसे गजरे खरीद लेता है, लेकिन मुझे शक हुआ कि आखिर वो रोजाना सिर्फ मुझसे गजरे क्यों खरीदता है, दूसरों से क्यों नहीं खरीदता। मैंने आज इसका पीछा किया तो मैंने इसे तुम्हारे घर जाते देखा तो मुझे हैरत हुई। मुलाजिम लड़के से पूछा तो इसने मुझे बताया वो असद भाई के बड़े भाई वसीम है जो दुबई से पाकिस्तान आए हुए हैं। अरूज मेरी दुआ सुनकर सर झुका लिया और वो शर्मिंदा थी। चंद लम्हों के
बाद जब इसने कहा कि वो वसीम भाई के पाकिस्तान आमद आने से वाकिफ थी, लेकिन मैंने इसलिए आपको नहीं बताया कि जब वसीम भाई को मेरे हालात का पता चला तो वो बहुत अफसरदा हुए और हमारे घर आकर हमारी मदद करना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि आदिल खुददार इंसान है, वो ये सब पसंद नहीं करेंगे, वो किसी से इमदाद नहीं लेंगे। इसलिए वसीम भाई ने मुझसे मशवरा किया कि मैं अब गुलदस्ते बनाकर दरबार बेचने के लिए दूं और वो आपसे रोजाना गजरे लेकर जाया करेगा। इस तरह गजरे भी फरोख्त हो जाएंगे और आपकी आमदनी भी हो जाया करेगी, जिससे हमारा अखराजात भी पूरे हो जाया करेंगे। वसीम भाई ने यह भी कहा कि जब तक आपके लिए अच्छी नौकरी का बंदोबस्त नहीं कर लेंगे तब तक आप गजरे बनाकर देती रहो। यह सारा मंसूबा वसीम भाई का था। मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने ऐसा करना मुनासिब समझा था। इतना कहने के बाद रूज ने खामोश होकर सर झुका लिया। मुझे मालूम था कि वो अंदर ही अंदर बेहद शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन खुशी इस बात की थी कि इसने मेरी खुददारी को देखते हुए बड़े भाई से इमदाद हासिल नहीं की। मैंने नरम लहजे में कहा कि रूज तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे ये तो बताना चाहिए था। कि रूज ने सर उठाकर मुझे देखा और कहा कि अगर आपको बता देती तो क्या आप गजरे लेकर दरबार पर जाते? नहीं, आप कभी ना जाते। अच्छा, आप नाराज ना हो और मैं दिन रात आपके लिए अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको किसी अच्छी नौकरी लगवा दे जिससे हमारी जिंदगी सुकून से गुजरे। मैंने दिल ही दिल में आमीन कहा। अचानक बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई तो हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने आना था। मैंने रूज से पूछा तो इसने नाम में सर हिला दिया। मैंने कहा दरवाजा खोलो तो बाहर वसीम भाई और इनकी बेगम आए हुए थे। मैंने इन्हें अंदर आने के लिए कहा। वसीम भाई और इनकी बेगम से गर्मजोशी से मिले और वसीम भाई कहने लगे, मुझे मालूम है तुम मेरे घर तक पहुंच गया, इसलिए मैं यहाँ चला आया हूँ ताकि सारा माजरा हल हो जाए। एक खुशखबरी है, तुम्हारे लिए अच्छी सी नौकरी का बंदोबस्त हो गया है। कल से तुम दरबार पर गजरे बेचने नहीं जाओगे बल्कि नौकरी करोगे। मेरे एक दोस्त का होटल है, वहाँ तुम मैनेजर लग गए हो। तुम्हारा माहाना तनख्वाह 50,000 होगी। ये सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया और अल्लाह का बेहद शुक्रिया अदा किया। इसने मेरे सब्र का बेहतरीन फल मुझे बहुत खुशी इसने मेरे सब्र का फल मुझे बहुत अच्छा दिया था। मुझे बहुत खुशी थी। मैंने रूज के भाई शकूर से कहा कि तुम पैसे दे दो, बदले में मैं तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर इसे पैसे देकर भेजा और फिर महल मुंतजिर कर दिया। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई क्योंकि इन्हें आप रोजाना गजले लेकर जाते थे तो वो सारे गजले इसलिए मैं खरीद कर जाता था क्योंकि इस दिन बहन रो कर चली गई थी। मैंने बहू से कहा, नाराजगी का इख्तियार किया तो रो कर माफी मांगने लगी और वादा किया कि आइंदा ऐसा नहीं करेगी। तो दरवाजे पर नजरिए की तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। शाम को बीवी सो गई और मैंने उदास दिल के कहने के बाद वो हंस पड़ी। तो हम सब भी आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह के सबकवास कहानी और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई क्योंकि इन्हें आप रोजाना गजले लेकर जाते थे तो वो सारे गजले इसलिए मैं खरीद कर जाता था क्योंकि इस दिन बहन रो कर चली गई थी। मैंने बहू से कहा, नाराजगी का इख्तियार किया तो रो कर माफी मांगने लगी और वादा किया कि आइंदा ऐसा नहीं करेगी। तो दरवाजे पर नजरिए की तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। शाम को बीवी सो गई और मैंने उदास दिल के कहने के बाद वो हंस पड़ी। तो हम सब भी आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह के सबकवास कहानी और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।